Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer classes. So kids, in the last chapter, we have read about computer memory. In the last chapter, we were reading about computer memory, है ना? Now, and in our last video, we have started doing chapter 5, that is knowing Windows 7. We have started chapter 5, that is knowing Windows 7. Okay? Okay now. So let us start that chapter and let us recall the thing that we have already revised in that chapter. Okay. So here we are at our chapter 5, knowing Windows 7. So in that chapter, in this chapter we have already read about Windows 7. I have given you a introduction of Windows 7. Windows 7 का एक इंट्रोडक्शन मैम ने दे दिया था. मैम ने बताया था कि व्हाट इज विंडोज आर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और इनके कई सारे विंडोज क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. और भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कैसा वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज जैसा वर्क करता है बिटवीन विंडोज सिस्टम. कैसा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है एक ब्रिज जैसा यूजर और कंप्यूटर के बीच में. कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक ब्रिज जैसा वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट operating system is the first software that is needed to be installed in the computer. Okay, so these things we have already done. I have explained you how to start Windows 7. Okay, so we were doing desktop icons and we were studying about component of Windows 7 screen. Windows 7 screen की जितने component होते हैं we were studying that. Okay, so we have read up to हाँ या we have completed up to here. I guess start button तक मैम ने समझा दिया था. Let us move ahead. No. Okay. So start button तक हमने पढ़ा था. Now start menu on the left corner of a taskbar. See, this is the left corner of taskbar. यहाँ पे हमें start दिख रहा है ना? So this is what? This is left corner of start menu. On the left corner of start menu, on the left corner of taskbar, you can see the start button. Here you can see the start button. By clicking on the start button, you can explore start menu. By clicking on the start button, you can explore start menu. ठीक है, चलो करके देखते हैं. स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके देखते हैं, है ना? करके देखें. Now what are the way to open start menu? Just we have to click on the start menu. कुछ नहीं करना है, खाली start menu पे एक क्लिक करना है. Just by clicking the start menu, what will happen? Just by clicking the start menu we will reach. ठीक है, just by clicking on the start button we will reach on the start menu. Now next is let us do it. ठीक है, तो यहाँ पे देखो. अच्छा, मैम ने आपको बताया है कि दिस इज विंडोज 7 और मैम का क्या है? विंडोज 10. तो थोड़े बहुत से डिफरेंसेस आ सकते हैं. सी, जैसे ही मैंने स्टार्ट मेनू पे क्लिक किया, व्हाट हैपन? स्टार्ट मेनू अपीयर्स. ओके, सी, ये स्टार्ट मेनू पूरा यहाँ पे आ गया. ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट थिंग इज
opening a program using start menu. Next is opening a program using start menu. So in Windows 7, let us see what are the ways by which we can open start menu. कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम start menu पे जाके we can start the program. Let us see what are the different ways by which we can open the start menu. We can open a program. First of all, click on the start button, then click on the all program. ठीक है, after clicking the start button, click on the all program. Click on all program to view a list of the program present on the hard disk. A list of programs appears. All programs button changes to back button. ठीक है. Now next is click on the program you want to open. अभी क्या फिर what we have to do, we have to click on the start menu, click on the program that you want to open. ठीक है, देखो देखो सबसे पहले क्या करना है, first of all we have to go to the start button, we have to click on the start button, then वहां से we have to go to all programs. After reaching all program, what we have to do, all program के बाद हमें कहाँ क्लिक ऑन, उसके बाद we have, देखो ऐसे और सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे and here we can click on the program that we wants to open. यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे different programs open हो जाएंगे. यहाँ पे what we can do, we can click on the program that we wants to open. Yeah, we can here click on the program that we wants to open. Okay, now some program have sub menu. Now some program have sub menu. मतलब क्या, sub menu means what, that they are having some additional program under this. For example, accessories. Accessories sub menu will appear. ठीक है, accessories sub menu will appear. Click on the WordPad. So here they are telling you to open WordPad window. ठीक है, WordPad window. अच्छा चलो फिर से देखते हैं. सबसे पहले what we have to do, we have to click on the start button के बाद then we have to click on all program. After clicking on all program, we can do two things. Either we can click on the program directly, जो भी program हमें चाहिए उस पर हम directly click कर दें. ठीक है, या तो जो प्रोग्राम हमें चाहिए हम उस पर डायरेक्टली क्लिक कर दें, या हम एक्सेसरीज में क्लिक करके भी प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं. वी कैन क्लिक ऑन एक्सेसरीज एंड देन ऑल्सो वी कैन सर्च फॉर द प्रोग्राम. ओके, नाउ लेट अस डू दिस. चलो मैम आपको करके दिखाएं. तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है वर्डपैड का. आपके बुक में ये क्या कर रहे हैं, आपकी बुक में they are opening WordPad. ठीक है, what is WordPad? WordPad is a word program. ठीक है, WordPad window. तो click on the accessory, click on WordPad from accessories sub menu. WordPad क्या करना है, click on the WordPad from accessories sub menu. सब में accessories में जाके we have to click on WordPad. Now one thing I would like to tell you that एक बात मैम आपको, ये इंपॉर्टेंट सी बात आपको मैम बता दे कि व्हाट हैपन कि इन विंडोज 10 में क्या होता है. सी, विंडोज 10 में वी आर नॉट हैविंग एक्सेसरीज हियर. विंडोज 10 में एक्सेसरीज का ऑप्शन नहीं होता है. विंडोज 10 में एक्सेसरीज का ऑप्शन नहीं होता. एक्सेसरीज का ऑप्शन वी विल गेट इन विंडोज 7 ओनली. तो ये हो सकता है कि आपके प्रोग्राम, आपके ये लैपटॉप टू लैपटॉप क्या हो, यस, ये लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करे. ठीक है, तो बट हमें प्रोग्राम तो ओपन करना है. तो हाउ वी विल डू दिस, हमें प्रोग्राम तो ओपन करना ही है. तो हम वो काम कैसे करेंगे, हाउ वी विल ओपन द प्रोग्राम, we will open the program by following the step. Like first of all we will go to start menu. Okay, so ma'am is going to show you.
Okay, now, so ma'am is going to show you how to open WordPad. Ma'am is here going to show you that how you will open the WordPad in your computer, in your Windows 7. Windows 7 में WordPad कैसे open करें, ma'am is going to show you. And one more thing is that कि मैम के लैपटॉप में कौन सा वर्जन है विंडोज का, 10. विंडोज 10 इज देयर. ठीक है, तो चलो मैम दिखाते हैं आपको. नाउ सी, हियर आई एम हैविंग स्टार्ट बटन ना, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सी, यहाँ पे ये पूरा स्टार्ट बटन ओपन हो गया. व्हाट नेक्स्ट आई वाज आस्क्ड टू डू, अब यहाँ पे सॉरी, अब इधर बोला गया है कि क्या करने को बोला है, इधर बोला है कि पहले ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे, लेकिन विंडोज 10 में ऑल प्रोग्राम्स या एक्सेसरीज का ऑप्शन नहीं है. सो वेयर वी विल गो टू सर्च, बिकॉज वी हैव टू सर्च अ प्रोग्राम एंड दैट्स व्हाई वी विल गो टू सर्च ऑप्शन. ठीक है, वी विल गो टू सर्च एंड वी विल टाइप हियर. यहाँ पे हम टाइप करेंगे. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्डपैड. ठीक है, हमें चाहिए वर्डपैड. सी, वर्डपैड, यहाँ पे देखो वर्डपैड ऑप्शन शो हो रहा है सबको. यहाँ पे सबको वर्डपैड ऑप्शन शो हो रहा है. ओके, नाउ सो कहाँ गया मेरा वर्डपैड, चलो फिर से ढूंढ लेते हैं. तो वर्डपैड है ना, देखो वर्डपैड ऑप्शन इज showing here. So what we will do, we will open that option. हम क्या करेंगे, हम इस ऑप्शन को we will click on open. अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वर्डपैड क्या हो गया, ओपन हो गया. सारे बच्चों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना. हाँ, क्या हुआ यहाँ पे वर्डपैड ओपन हो गया बेटा, वर्डपैड ओपन हो गया. ठीक है, तो किस तरीके से हमने वर्डपैड ओपन किया, हम सर्च पे गए. सर्च पे जाके हमने क्या किया, सर्च, हम सबसे पहले हम कहाँ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम गए स्टार्ट पे. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद व्हाट वी हैव डन, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन वी हैव clicked on the search option. We have then clicked on the search option, and after clicking on the search option what happened, search option पे क्लिक होने के बाद क्या हुआ भाई, सर्च ऑप्शन पे क्लिक होने के बाद हमारा वर्डपैड ओपन हो गया. कुछ ऐसा वर्डपैड हमारा ओपन हुआ था ना, हमारा वर्डपैड कुछ इस तरह का ओपन हुआ था. नाउ लेट अस मूव अहेड. चलो देखते हैं वर्डपैड में हमें क्या पढ़ना है. अच्छा देखो, यहाँ पे एक अच्छी बात बताई, Windows 7 add an icon for the program to the taskbar. ये अभी मैम आपको दिखाएंगे. Here it is written that Windows 7 adds an icon for the program to the taskbar. Windows 7 क्या करता है, टास्क बार में एक आइकन को क्या कर देता है, सेव कर देता है यार. ओके, नाउ next what we have to do, next thing that we have to read is program window. अब जैसे ओके, नेक्स्ट वी हैव टू रीड इज प्रोग्राम विंडो. तो भाई वर्ड क्या था, वर्डपैड वाज अ प्रोग्राम, और अब हम पढ़ेंगे उसके प्रोग्राम विंडो के बारे में. तो पहले हम इधर देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं, उसके बाद मैम विल शो द सेम टू यू इन दैट प्रोग्राम ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या क्या है, हियर वी आर हैविंग, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में वी आर हैविंग हियर प्रोग्राम बटन. प्रोग्राम बटन के ऊपर वी आर हैविंग क्विक एक्सेस टूल बार. प्रोग्राम बटन के ऊपर वी आर हैविंग क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, है ना, क्योंकि ये ब्लू के ऊपर ब्लू कुछ पता भी नहीं चल रहा. चलो, मैम इज गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ द पेन. सो विच कलर, okay, this one, and let me increase the thickness also.
Okay, now see. So at the leftmost side we are having program button, and now here we are having just next to program button, इधर ऊपर साइड में we are having क्विक एक्सेस टूल बार। अभी मैम एक एक टूल को आपको समझाएंगे, पहले खाली नेमिंग हम देख लें, उसके बाद मैम विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। So after quick access toolbar, next we are having is title bar. Next option is title bar. अच्छा टाइटल बार भी अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज टाइटल बार। अच्छा देखो, दिस होल एरिया, ये जो ऊपर जो रेक्टेंगुलर बार बना है ना, इसी को हम टाइटल बार कहते हैं। वी कॉल टाइटल बार टू दिस एरिया ओनली। व्हाई वी कॉल टाइटल बार टू दिस एरिया? वी कॉल टाइटल बार टू दिस एरिया बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्रोग्राम हम करते हैं उसका टाइटल लिखा रहता है, उस प्रोग्राम का नेम हमें वहां पे दिखता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट टाइटल बार, है ना। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई? ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज टैब्स। देखो, below the quick access toolbar we are having tabs. Now next to the tab here at the right hand side we are having minimize button, maximize button and close button. तो this तो I can show you here also. ये तो मैम आपको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। देखो मैम के स्क्रीन के इधर ऊपर देखो, दिस इज मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड कट बटन, क्लोज बटन। ठीक है, देखो अगर मैम मिनिमाइज करते हैं तो क्या होता है, मिनिमाइज करने पे वो प्रोग्राम कहाँ गया, वो मिनिमाइज हो गया, वो कहीं पे बैकग्राउंड पे वो प्रोग्राम कहीं मिनिमाइज हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिबन। अब ये जो पूरा एरिया हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस एरिया इज टर्म्ड एज रिबन। तो हमने यहाँ पिक्चर में तो समझ लिया, चलो अब लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस सी द सेम थिंग इन दैट प्रोग्राम आल्सो। वर्ड पैड पे, अच्छा मैम शो यू दिस आल्सो। यहाँ पे लिखा है ना कि विंडोज 7 add an icon for the program to the taskbar. So let us see. Search, and then what we have to put here, WordPad. WordPad. Then अब देखो WordPad हमारा ओपन हो गया। Okay, wait a minute. Okay, I hope this WordPad is visible to you all. Now see all the options that we have studied. Okay, wait a minute. Let me help. अच्छा, अब एक चीज देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि विंडोज क्या करता है, टास्क बार में जो भी फाइल या जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं उसको टास्क बार में भी ओपन कर देता है। सी, दिस इज माय टास्क बार, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड पैड का एक आइकन बना हुआ है ना। सी, यहाँ पे वर्ड पैड का एक आइकन बना हुआ है ना, तो यही चीज वहां पे मेंशन की थी। ओके, अच्छा चलो लेट अस कंपेयर एंड वी विल रीड। सी, so at the left hand side we are having program button। ठीक है, देखो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ड पैड। वर्ड पैड मतलब यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है वर्ड पैड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोग्राम बटन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू प्रोग्राम वी आर हैविंग होम एंड व्यू। अब यहाँ पे भी देखो वी आर हैविंग ना होम एंड व्यू, टू ऑप्शंस आर गिवन हियर ना, होम ऑप्शन एंड देन व्यू ऑप्शन। Okay, so home and view are, what are they? They are tab. Home and view, they are tab. Now next to tab, see here title bar। कहाँ गया मेरा प्रोग्राम? Okay,
So see, in next to tab we are having, टैब के बगल में क्या है इधर, वी आर हैविंग हियर टाइटल बार, दिख रहा है ये पूरा टाइटल बार। तो देखो बेटा, दिस होल एरिया इज टाइटल बार। वाई वी कॉल इट टाइटल बार, बिकॉज देखो यहाँ पे इसका नाम डॉक्यूमेंट वर्ड पैड करके आ रहा ना, और जब मैम इसको रीनेम कर देंगे ना तो इसका एक्चुअल नेम वहां पे आने लगेगा। नेक्स्ट इज मिनिमाइज बटन। तो मिनिमाइज बटन आई हैव ऑलरेडी शो यू, देखो राइट हैंड साइड ऊपर, राइट हैंड साइड ऊपर, दिस इज व्हाट मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज, ठीक है। एंड इधर क्या है, ये है पूरा हमारा रिबन एरिया, दिस इज व्हाट, दिस इज रिबन एरिया, रिबन। यहाँ पे व्हाट वी गेट, यहाँ पे देखो वी गेट अलग अलग टाइप के कंपोनेंट, अलग अलग तरह के टूल्स दैट विल हेल्प यू टू फ्रेम अ वर्ड प्रोग्राम हियर। ओके, सो वी विल रीड अबाउट दैट। नाउ लेट अस move toward our chapter. So the first thing that they have explained here is in program window, जो सबसे पहली चीज इन्होंने एक्सप्लेन की है, that is a program window is a rectangular area on the desktop surrounded by a frame and title bar at the top. So a program window is a rectangular area. What kind of area it is? It is a rectangular area on the desktop surrounded by and on the desktop surrounded by a frame and title bar at the top. देखो यहाँ पे देखो ऊपर हमें टाइटल बार दिख रहा है ना। Now first is title bar. First option that we have to read is title bar. The topmost bar that displays the name of the program is the title bar. The topmost bar, जो सबसे ऊपर बार पे जहाँ पे हमें प्रोग्राम का नेम दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, we call it title bar. Next is quick access toolbar. Next option we are having quick access toolbar. Next option we are having quick access toolbar. On the title bar पे there is a quick access toolbar. Title bar पे we are having a quick access toolbar with some of the most important button, कुछ बहुत important button के साथ, जैसे save, undo, redo. Okay, got it? So on the title bar, quick access toolbar में सबसे टॉप पे वी आर हैविंग, देखो कहाँ पे होता है क्विक एक्सेस टूल बार, सी हियर, यहाँ पे देखो टाइटल बार पे सबसे ऊपर वी आर हैविंग क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। तो देयर क्विक एक्सेस टूल बार में व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर हैविंग देयर, सेव, undo and redo, save, undo and redo, these are the different options or different tools that are present there on quick access toolbar. Next option is program button. Program button is the next option. See here, program button. So under the quick access toolbar, the first button on the left side is program button, which opens up the main menu of the program. तो ये क्या करता है, ये program, ये main menu क्या करता है, open करता है. It open up the main menu of the program. चलो पहले इतनी चीजें देख लें. First of all, let us see title bar, quick access toolbar and program button. Let us see these things first. Okay. Okay. So we will start with program. ठीक है, देखो ये जो फाइल लिखा है ना, दिस इज प्रोग्राम. नाउ सी दिस इज द मेन मेनू.
अब देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है जो कि हमारे लिए अवेलेबल है. ऑप्शन दैट आर अवेलेबल हियर इज न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, send in email, about the WordPad and exit. These are the things जो कि यहाँ पे present है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू, जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज न्यू. तो अब उस न्यू ऑप्शन में क्या है बेटा, सपोज आई वांट टू ओपन अ न्यू वर्ड फाइल. अगर मुझे ओपन करनी है एक नई वर्ड फाइल, तो व्हाट आई हैव टू डू टू ओपन अ न्यू वर्ड फाइल, व्हाट आई कैन डू to open a new word file, I have to click here. यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो what will happen, it will help me to create a new document. Now next is open. Next is open. Okay. तो in open option what we can do, अगर suppose करो मुझे कोई पुरानी फाइल देखनी है, अगर मुझे कोई पुरानी फाइल देखनी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ओपन पे जाके उसको ओपन कर सकती हूँ. ओपन पे जाके उसे अपने सामने लाके अभी आई कैन डू द एडिटिंग. नेक्स्ट इज सेव बटन. so here I have opened a program and if I want to save it, अगर मुझे इसको क्या करना है, if I want to save it, इसको सेव करने के लिए what I can do, I have to click here. इसको to save this file what I have to do, I have to click it here. Now next is save as. save as में मान लो किसी को now next is save as. save as में what I can do, I can say मतलब यहाँ पे हमें destination बता देते हैं कि where I want to save the file. print, मैंने एक वर्ड पे सपोज करो मैंने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, कोई लेटर या कोई ऐसे और एनीथिंग, आई हैव क्रिएटेड एनीथिंग. नाउ आई वांट टू प्रिंट इट. अब मुझे चाहिए कि भाई मैं उसको प्रिंट करा सकूं, मुझे वो किस में चाहिए, आई वांट दैट इन हार्ड कॉपी. ओके. हाँ, so I want it in hard copy. So what I can do, I will click, I will click on program menu and then I will click on print button. Okay, so these are various options that are present there in program menu. program menu में यही सारे अलग अलग ऑप्शन पता होते हैं. नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. सी क्विक एक्सेस टूल बार. अच्छा देखो, क्विक एक्सेस टूल बार में वी हैव रेड अ लाइन that if we want we can add more options on quick access toolbar, but by default there are 3 options. These are save, undo and redo. Save, undo and redo. Okay, now नेक्स्ट ऑप्शन is suppose I want to customize, suppose I want to add something here. अब यहाँ पे देखो पहले से save, undo, redo ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्विक एक्सेस टूल बार में. नाउ आई वांट टू ऐड क्विक प्रिंट हियर, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक हियर. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेव, undo, redo एंड क्विक प्रिंट का ऑप्शन भी इधर आ गया स्क्रीन पे. ओके, इतनी चीजें सब सारे बच्चों को समझ में आ गई. नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्राम बटन. अच्छा, प्रोग्राम बटन तक वी हैव डन अप टू प्रोग्राम बटन. ठीक है, so today we have done program button, quick access toolbar. We have learned how we can add new things, new files in quick access toolbar. Okay kids, this is it for today. We will meet in our next class.